नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप लोगों का वीक अच्छा गुजरा एंड आई होप ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट सेशन जिसमें हमने बात की थी ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया. We talked about the purpose of marriage and then we talked about how to choose a spouse, right? अच्छा माइंड यू, जितनी बातें हमने लास्ट टाइम की थी all of those are supposed to be applied to yourself first. ठीक, apply that criteria to yourself first and see ke whether I am eligible for marriage or not, whether I fulfill uh, the criteria that I am supposed to be assessing other people with, right? किसी और पे वो अप्लाई करने से पहले अपने आप पे वो अप्लाई कर देखें कि मैं अभी एलिजिबल हूँ भी शादी के लिए या नहीं, राइट? तो दैट्स इज समथिंग आई वांट टू मेंशन. खैर, we talked about सूरत रूम की वो आयत, राइट? कि sorry, what's the ayah? ومن آياته أن خلق لهم, sorry man, ayat भूल गया. uh, from his signs is that he created you. सूरत रूम आया 21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ये पार्ट हमने इन द लास्ट सेशन डिस्कस किया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ मैरिज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरपर्सनल पर्पस ऑफ मैरिज, राइट? छोड़ दो कि आपके और अल्लाह के नज़दीक उसकी क्या वो है, ये छोड़ दें कि सुन्नत की इत्तिबा, ऑल ऑफ दैट साइड, स्पिरिचुअल पर्पस साइड, इंटरपर्सनली बिटवीन पीपल, राइट? ऑन अ ह्यूमन लेवल द प्राइम पर्पस ऑफ मैरिज should first and foremost be लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून पाओ, तस्कीन पाओ, right? So that there's solace and comfort and tranquility for you. Or we looked at how when you're supposed to be choosing a spouse, you're supposed to be looking at whether they fulfill this purpose or not, right? क्या उनको देख के या उनसे मिल के या उनसे बात करके you get overly excited and hyped up, and like, does your heart race or does your heart slow down, right? So that's a bit of a emotional thing, okay? Whether they give you calm or whether they give you stress, that's supposed to be a criteria for marriage, that's supposed to be a check for marriage, right? मैंने कहा था कि इस आयत का सेकंड पोर्शन जो है we will use in this session, because now we're moving from selection criteria and how to choose a spouse, उससे move करके अब how to survive a marriage, how to make that relationship flourish, how to build a home. अब उस पर बात होगी इंशाल्लाह, right? तो लितस्कुनु इलैहा, इसके बाद the ayah says वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने पैदा किया उनके दरमियान, बनाया उनके बीच में दो चीज़ों, क्या दो चीज़ें? मवद्दा व रहमा, राइट? और मैंने इसकी एक बहुत क्रूड ट्रांसलेशन लास्ट सेशन में की थी कि मवद्दा इज़ लव एंड रहमा इज़ मर्सी, काइंडनेस, ठीक? बट अगेन Arabic is such a diverse and such a rich language कि इस इन दो अल्फाज के पीछे एक पूरा समंदर है मानी का, राइट? The best explanation I found for mawadda is कि mawadda is not love that you feel, that love that's just in your heart. Mawadda is love that embodies actions, ठीक? जो नज़र आता है आपके अमल में, जो नज़र आता है in, you know, acts of service, in giving gifts, in, you know, helping the other person, in caring for the other person, जो it's not necessary कि you feel the love when you're doing it. It is necessary कि the other person sees it as an action of love, right? और this is something a bit more foundational to जो रिश्ता है ना इस्लाम में निकाह का. The Western concept is कि भाई how can we get married to someone without
getting to know them, without dating them, without living with them, without spending a bunch of time with them, उसके बगैर कैसे हम किसी से शादी कर लें, कैसे उधर ज़िंदगी भर गुजारने का फैसला करें, because we don't know if we love them. Islamically that's not a prerequisite to marriage, right? Islamically ये नहीं कहा गया कि हम तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा करेंगे. Arabic has words for the feeling of love. Hub hai, ishq hai. There's lots of words that embody that feeling. लेकिन Allah subhanahu wa ta'ala says here कि وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, right? Mawadda is a kind of love that is embodied by action, right? जो आपको, it takes you to a point where you act it out. आप, you're not, when you get married, आपके पहला initial few days, weeks, उसमें you're not in love, right? You don't really know that person that well. आपको शादी से पहले डेट्स पे जाने की तो इजाज़त नहीं है. आपको शादी से पहले यू नो रात को फ़ोन पे बात करने की तो इजाज़त नहीं है. तो you can't be in love, right fresh out of the gate. What you can be given, what you can have, is these acts of love, these opportunities of love, right? कि you do actions, you are inclined to do actions, inclined to do things that make the other person slowly fall in love with you, right? That encourage love, that emphasize love, right? किसी के लिए फूल ले आना, right? कुछ मीठा ले आना, किसी के पसंद का खाना बना लेना, right? Sitting and talking to them. They, again, it can be anything and everything within a marital relationship, something that is an act of love, right? जो love languages की बात होती है ना, कि acts of service and gifts and physical touch and all of that, those all fall under mawadda. Okay, you may not be in love yet, but if you keep doing these things, these acts of love, with obviously sincerity, not just to manipulate the other person or whatever, but if you keep doing them properly and you keep fulfilling their other rights, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will build that love, right? आपके दिलों के बीच में वो मोहब्बत आ जाएगी. Not immediately, it will take time to develop, लेकिन वो आ जाएगी. तो Islam doesn't necessarily emphasize mohabbat, hub, as a prerequisite for marriage, because again, Islamically speaking, हो नहीं सकता. Possible नहीं है कि before marriage you're in love with someone. You can be infatuated, you can have a crush on someone, you can like someone, लेकिन you can't be in love with them because you don't know them on that deep of a level. ठीक? तो इसलिए the point is mawadda, right? Or breaking away from mawadda for a bit, let's say once you're in that relationship of nikah में कुछ, by the way, nikah at its core is a legal contract. There should be no confusion regarding this. nikah एक कानूनी तौर पे एक contract है, right? It is a legal contract like any other contract. It requires witnesses, it requires signatures, it requires consent. उसमें conditions हो सकती हैं, clauses हो सकते हैं, all of that, ठीक है? और it again gives both parties the right to put a lot of conditions and clauses from their own free will into it. ठीक है? निकाह is not restrictive कि नहीं सिर्फ यही चीज़ें हो सकती हैं. निकाह में बहुत कुछ हो सकता है. In your nikah, in your contract of nikah, you can put conditions like आपको monthly pocket money, या मतलब wife as again put कर रही है उसमें कि मुझे I want this much in allowance या pocket money or whatever you want to call it. ठीक? I want to live separately. I want कि हम एक महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा हम कहीं वेकेशन पे जाएं एक वीकेंड के लिए, right? You can put anything and everything in that contract. ठीक? The husband can put कि I want you to complete your XYZ degree. Since it's a contract, you can put basically anything into it other than कोई चीज़ अगर बिल्कुल Islamically prohibited है. ठीक? तो that's that. अब the problem is
कि often times we start looking at nikah in a purely legal sense. मैं ये नहीं कह रहा कि it's not a legal contract, it is a legal contract. लेकिन अगर आप निकाह को एज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट ओनली देखने लगे ना, तो होगा क्या कि फिर यू ओनली fulfill the bare minimums, the legal minimums that the contract requires you to fulfill. ठीक, लेट्स से अगर उसमें कोई एडिशनल क्लॉजेस नहीं थे, तो एट इट्स वेरी बेस निकाह की bare minimums are very simple. निकाह के bare minimums for the husband are कि वो मेहर देगा वाइफ को, राइट? महर में ऑब्वियसली कितनी अमाउंट है वो वाइफ ने डिसाइड की हुई है, मौजल है गैर मौजल है, फ़ौरन देना है बाद देना है, व्हाटएवर, वो चीज़ डिसाइड हुई हुई है, राइट? वो नफ़का उसकी जिम्मेदारी है कि वाइफ का खाना पीना, घर और कपड़े, ये चीज़ें हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और व्हाट्स वन मोर थिंग, मुआशरा बिल मारूफ, कि वो उसके साथ भले तरीके से रहेगा, उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा. ही विल बी डिसेंट विद हर, ह्यूमन डिसेंसी का ख्याल रखेगा. ठीक, दीज आर द लीगल बेयर मिनिमम्स. वाइफ के साइड पे द लीगल बेयर मिनिमम्स आर के वो हस्बैंड की वेल्थ और प्रॉपर्टी का और सीक्रेट्स का वो करेगी, प्रोटेक्शन रखेगी. वो हस्बैंड ने कोई बात, कोई सीक्रेट बताई है उसको, तो वो बाहर नहीं बताएगी. हस्बैंड की वेल्थ को उसकी परमिशन के बगैर या उसकी जनरल कंसेंट के बगैर, उसने मना किया हुआ किसी एक बात यहाँ पे खर्च करने से, तो वो उसको वहाँ खर्च नहीं करेगी. और what else? और क्योंकि मर्द कवाम है, तो उसकी जहाँ पे लीगल अथॉरिटी है उसको कोई हुक्म देने की, अगेन उसमें की स्पेसिफिक्स क्या है उसमें अभी नहीं जा रहा, क्योंकि वो फिक का एक लंबा लचड़ा लेक्चर हो जाएगा. नॉट इन एवरीथिंग, बट जिन चीज़ों में उसको इताअत का हक है हस्बैंड को, उसमें उसकी इताअत करेगी. ठीक, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ. अब अगर दोनों बिल्कुल लीगल बेयर मिनिमम्स पे आ जाएं और उससे एक स्टेप आगे ना बढ़े ना, तो दिस मैरिज कैन नॉट वर्क. Because marriage, while it is a legal contract, partially, it is not only a legal contract, right? एक human to human relationship है, उसमें the human aspect, the emotional aspect, the psychological aspect is very strong and it's very very significant. I'll give you an example. वाइफ बोले कि तुम्हारे लिए खाना बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगी. बच्चों को दूध पिलाना मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, तुम कोई ताइया हायर कर लो. टेक्निकली बच्चों की तरबियत भी मेरी फ़र्ज़ नहीं है, तो उसके लिए तुम स्कूल भेज दो या बेबी सिटिंग करवा लो या जो मर्ज़ी करो, मैं सिर्फ घर पर बैठ के चिल करूँगी. हस्बैंड बोले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा खाना पानी कपड़े और घर है. ठीक, दैट कैन बी restaurant meals and designer clothes and a mansion, and that can be a one bedroom apartment and साल का एक जोड़ा and दाल रोटी. ठीक है, दोनों चीज़ों में नफका पूरा हो रहा है. और द हस्बैंड कैन से कि भाई इस्लामिकली, अच्छा बाय द वे ये थोड़ा सा एक फिक का वो पॉइंट है जो जनरली पब्लिक को नहीं पता होता, मतलब जनरल नॉलेज में नहीं है, लेकिन इट्स एक्सेप्टेड थिंग अमंगस्ट स्कॉलर्स. हस्बैंड के ऊपर वाइफ की मेडिकल एक्सपेंसेस की ऑब्लिगेशन नहीं है. इफ शी इज सिक, शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल, शी हैज टू गेट सर्जरी व्हाटएवर, तो वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस आर नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द हस्बैंड. टेक्निकली देयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ द वाइफ्स फैमिली, फादर ब्रदर वाली साइड. ठीक, तो अब अगेन अगर दोनों लीगल बेयर मिनिमम्स पे आ जाए ना, तो ये हालात होंगे. अब यू टेल मी कि ये शादी चल सकती है नहीं चल सकती? कैन दिस गो ऑन? ऑब्वियसली इट वोंट वर्क ना. दिस इज मतलब अगेन दिस इज अ टॉक्सिक हाउस ना, दिस इज अ टॉक्सिक होम. अब इसमें इन दोनों की आपस में बन रही नहीं है,
दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड करके चल रहे हैं, दे लाइक नहीं बस मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन, बस सिर्फ ये करूंगा. Now that is a really negative and a really selfish way to look at things. और इस तरह से relationships नहीं चलते. Islamically, especially in a marriage, you need to make your conduct of ihsan. ihsan कहते हैं आपको अपनी obligation से बढ़ चढ़ के कुछ करना, किसी को उसके हक से ज्यादा देना. हक इज समथिंग, राइट इज समथिंग जो लीगली यू आर ऑब्लिगेटेड टू गिव देम. ठीक. एहसान इज कि यू आर नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड बट यू डू इट एनीवे. मैरिज कैन नॉट वर्क विदाउट एहसान फ्रॉम बोथ पार्टीज. कोई एक कर रही है दूसरी नहीं कर रही तो भी इट विल ब्रेक इवेंचुअली, या इट विल बी अ वेरी अनहेल्दी मैरिज. तो इसलिए अगेन the points being given in the ayah are وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. It's not कि वो हुकूक पूरे करते हैं, it's not कि वो उनके खाने पानी का ख्याल रखते हैं, it's not कि उनको अपनी obligations पूरी करते हैं. No. Point is कि there are acts of love and there's kindness, there's rahma, there's mercy in it, right? तो कहीं पे अगर कोई कमी कोताही होती भी है, they forgive, they forget, they cover it up. ठीक. हर बात को एक इशू नहीं बनाता. कॉम्प्रोमाइज एक एग्जिस्ट करता है विद इन दैट रिलेशनशिप. और बड़े ये बात अक्सर करते हैं, मुझे पहले समझ नहीं आती थी. आई यूज टू लुक एट इट फ्रॉम द लेंस कि भाई अगर आप शादी को फ्रॉम अ कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट लेके चलेंगे, तो भाई आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन मैरिज, तो फिर यू वोंट एवर बी हैप्पी. बिकॉज मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो आई एम ऑब्वियसली नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड, राइट? बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? कॉम्प्रोमाइज नेसेसरी इसलिए है, और सब किसी ने मुझे एक बहुत बहुत प्यारी एनालॉजी से समझाया. वो कहते हैं शादी से पहले यू आर लिविंग इन योर टू सेपरेट हाउसेस. ठीक. आप दोनों के दो अलग अलग घर हैं दैट यू मेड विद ब्रिक्स, और ये दोनों घर पार्शली कंप्लीट है. ये फुली कंप्लीट नहीं है, इनमें कहीं ना कोई सुराख है, कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कोताही, कुछ फ्लॉज हैं. व्हेन यू गेट मैरिड, what you need to do is break both of those houses, pick the best bricks and come together and make a new house. Right? जो flaws आपके घर में थे वो उसके घर से फुलफिल हो जाए, और जो flaws उसके घर में थे वो आपके घर की bricks से फुलफिल हो जाए. But neither of those houses stays. This is a new house that's created. Right? You take those pieces and you make a new house, you make it a new home, right? And that's how a marital compromise works. It's not कि एक साइड, एक बंदा, वाइफ या हस्बैंड बार बार कॉम्प्रोमाइज करता रहे और दूसरी साइड उसको पुश करती रहे. दिस इज टॉक्सिक, राइट? मैरिटल कॉम्प्रोमाइज इज कि कभी someone will have a bad day, कभी someone will forget to do something, कभी someone will be angry and lash out, कभी someone will get upset, right? उस मोमेंट में स्टेप बैक. ठीक है, मेरा हक था कि मुझे, I'll give you an example. Legally speaking, मतलब this is not legally speaking, this is इस्लाम में ना एक कॉन्सेप्ट होता है लीगैलिटी. मतलब एक हुक्म जो है ना, वो हुक्म हो सकता है दयानतन या कवान. जो दयानतन हुक्म होता है वो इज अ हुक्म, मतलब हुक्म अपनी जगह है इस्लामिकली, वो ऑब्लिगेशन है आप पे, लेकिन अ कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स इट, अ कोर्ट कैन नॉट यूज इट. ठीक. कवान जो हुक्म है उसको कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है, उस पर कोर्ट फैसला भी दे सकती है, उस पर कोर्ट सजा भी दे सकती है. ठीक. तो एक दयानतन राइट जिसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, वो ये है विद इन मैरिज कि यू हैव द राइट टू
intimacy with your spouse. Okay? Provided ke there's no valid reason why your spouse cannot give it to you. Matlab they're tired, they're sick, they're exhausted, they're mentally under a lot of stress. इस तरह का कोई valid reason नहीं है. They just don't want to give it to you. उसमें अगेन आपका स्पिरिचुअल राइट, अल्लाह के नज़दीक आपका ये हक था कि आप अगर अपने स्पाउस से यू आस्क देम फॉर इंटीमेसी तो दे हैव टू बी इंटीमेट विद यू. ठीक, इसको अगेन अ कोर्ट कांट एनफोर्स दिस, बट अल्लाह के नज़दीक ये हक है आपका फॉर बोथ स्पाउसेस, राइट? तो इफ अ वाइफ आस्क्स अ हस्बैंड फॉर इंटीमेसी एंड ही इज नॉट टायर्ड और सिक और एग्जॉस्टेड और व्हाटएवर, तो it is his responsibility to be intimate with her, even if he does not really want to in that moment. ठीक? अब मैं let's say या एक बंदा अपनी वाइफ से he wants to be intimate, right? Wife says no. What's gonna happen is कि he asked for something that was his right, but he wasn't given it. अब यहाँ पे he can, चलो if this was one off, ठीक है, कुछ चीज़ हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ घर में, मे बी बच्चों को बच्चे had a hard day at school, या they were busy, या wife was busy with the kids. It wasn't enough to make her like really that tired or anything, but this is not in the mood. अब या तो आप अपना लीगल राइट लेके बैठ जाए कि नहीं मेरा ये हक है, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम गलत कर रही हो. इससे क्या होगा, फालतू में एक आग लगेगी, घर में लड़ाई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. यहाँ पे इफ यू कॉम्प्रोमाइज, आपका हक था, आप पीछे हट गए उस हक से. तो इन द लॉन्ग टर्म इट improves the environment of the house, improves the understanding between you guys, the relationship between you guys, right? Because ठीक है मेरा हक था, but चलो let's give her some time until next time. So that's how marital compromise works. Ab, if it happens again and again and again and again, obviously now this is becoming weaponization. ठीक, अब आप compromise करते ही जाओगे तो it's just becoming कि she's being stuck in her way कि नहीं नहीं दे, या he's being stuck in her way कि नहीं. तो again I digress, but that's marital compromise. In terms of mawadda, I wanna give you guys a bunch of examples. ठीक है, सीरा की examples हैं, and they're really profound, beautiful examples when it comes to how to deal with a marriage, right? Because बहुत सारी चीज़ें you can't really put into words or rules कि अच्छा इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है. But when you hear an example, you're like, oh, this is how it was supposed to be done. So, one of, अच्छा, sorry, I missed one thing. मवद्दत व रहमा के बाद there is सूरतुल बकरा की एक आयत that is another right of the spouses on each other, but not in the legal sense. Talking about spouses, बात क्या आती है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, they're garments for you, they're clothes for you, and you are garments for them. What does this mean? अच्छा, what is a garment? What is your clothes? What are the features या खास खुसूसियात क्या होती हैं कपड़ों में, right? First off, they cover you, right? They आपको ढांप लेते हैं. आपकी जो चीज़ छुपाने वाली होती है वो जाहिर नहीं करती, आपकी जीनत जाहिर नहीं करती, right? तो your secrets, your conversations, your home, all of that should be covered. Your flaws should be covered by your spouse. Okay? The minute your spouse tells, मतलब आपने कोई बात की अपने स्पाउस से, कोई सीक्रेट बताया, कोई कोई फ्लॉ आपका था, आपने शेयर किया,
the minute they put it out into the world, whether that is to their friends, to their family, to their parents, to siblings, whoever, okay, you're breaking the concept of libas. This was a right on your spouse, of your spouse, कि उसके सीक्रेट्स, उसके फ्लॉज, उसकी कमियां कुताहियां, उसकी शॉर्ट कमिंग्स आप कवर अप करें. You are each other's libas. You are supposed to cover each other, hide each other, not expose. ठीक, इस सेंस में लिबास. What else is libas? So libas protects you from heat, from cold, from wind, from sunlight, from uh, sand, from all of those things, all kinds of weather and external hardships, external difficulties. Apply that same to the marriage concept. Your spouse is supposed to protect you from everything outside. Everything outside this relationship, you are supposed to protect your spouse from, and your spouse is supposed to protect you from. Right? बाहर के लोगों की क्रिटिसिज्म है, बाहर के लोगों की बातें हैं, चार लोग क्या कहेंगे, यू नो मेरे पेरेंट्स हमारे बारे में ये कहते हैं, फादर इन लॉ को या मदर इन लॉ को वाइफ से ये मसला है. All of those are things that the spouse is supposed to protect you from. आप तक आने नहीं देंगे, right? From both sides. अक्सर हमारे यहाँ from the लड़कियों के लिए देखा जाता है ना कि ससुराल में जाती हैं तो अब क्या, अगेन एंड अगेन सास ससुर की या मेनली सास की बहू से कुछ चलती रहती है. Right? A man is supposed to step in and be like, नहीं, आपने कोई बात करनी है आप मुझसे करेंगी, मेरी वाइफ से क्या बात करनी है वो मैं करूंगा. You don't have a right to go direct to her in, again, in a conflict या in a fight या कोई complain है कुछ इस तरह की चीज. ठीक, obviously ये नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं कर सकते, but जहाँ पे there is an issue, you want to raise a problem, you want to point out an issue, you want to bring any other complaint, आप मुझसे बात, मेरा आपका बेटा मैं हूं, राइट? तो यू टॉक टू मी, आई टॉक टू माई वाइफ. एंड सिमिलरली अगर मेरी वाइफ को इशू है with my mother या with my father या with my siblings, तो she doesn't go to them, she talks to me. She doesn't fight them, fight तो मतलब is a negative, but she doesn't conflict with them on her own. I'm supposed to do that. Similarly on her side, ठीक, उसकी फैमिली को कोई इशू है मुझसे, तो again Islamically their anger या their issues are not supposed to come direct to me. They're supposed to go through her. क्यों? Because we are shields of one another, ना? We're supposed to protect one another. बाहर के लोगों का criticism I am supposed to shield her from. Okay? And then finally, it's covering, it's closeness. लिबास आपसे सबसे करीब तरीन चीज होता है. There is nothing between you and your garment. आपके और आपके कपड़ों के बीच में कुछ नहीं होता. दुनिया और आपके बीच में आपके कपड़े होते हैं. तो this applies to the marital relationship as well. कि you and your spouse are supposed to be the closest to each other. आपके बीच में कोई तीसरा बंदा ना हो जिसको ऐसी बातें पता हो जो स्पाउसेस को आपस में नहीं पता. मुझे कोई बात एक थर्ड पार्टी से नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरी वाइफ ने मेरे बारे में ये कहा था, या किसी वाइफ को ये बात किसी तीसरे बंदे से नहीं पता चलनी चाहिए मेरा हस्बैंड मेरे बारे में ये बातें करता है. We are direct with one another. We have no secrets from one another. Okay? We are the closest that can be. That is the intimacy of this relationship. Okay? We are, again, libas, right? The closest that is possible. हमारे बीच में कोई और नहीं आना चाहिए.
We should be the closest to each other. अब इसको if you apply to, again ये सारे principles you apply to सीरा and you see how these were practically, इनकी examples क्या थी ना, तो आपको नजर आएगा कि this is actually how this relationship is supposed to be. The most, the earliest example, the best example of uh, the safe house, the protection, the comfort that a marriage is supposed to be, is Hazrat Khadija alayhi salam. Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah पर जब पहली वही आई हिरा में, तो he came back home shaking and shivering, right? वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे, उनको शदीद बुखार हो रहा था, और all he could say was ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कुछ पहना दो, कुछ उड़ा दो, कंबल उड़ा दो मुझे. हज़रत खदीजा calmed him down, वो कंबल उड़ा के लटाया, and then उनको जब उन्होंने किस्सा सुनाया कि हुआ क्या, हज़रत खदीजा ने उनको कंफर्ट किया, राइट? तो आप ऐसे हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप ये करते हैं, आपको आपका रब ऐसे रुसवा नहीं कर सकता, आपको रुसवा नहीं कर सकता. अब दिस वाज नॉट समथिंग दैट शी न्यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? उस टाइम पर तो ना इस्लाम था ना वो था, तो मतलब ये कोई यकीन वाली बात नहीं थी. ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनके साथ बहुत सारी आजमाइशें आई हैं, बहुत सारी मुश्किलात आई हैं ज़िंदगी में, जो बहुत अच्छे लोग थे, राइट? तो दिस वाज नो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, दिस वाज अ वे टू calm him down, to comfort him, to give him some solace, right? That's the safe house that marriage is supposed to be. जो कुरान में सूरह फुरकान में आता है कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, इबादुर रहमान जो हैं, वो एक दुआ करते हैं. I'm forgetting the ayah number. I think ayah number 35 if I'm not mistaken. कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन. और वो लोग ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हमारे लिए बना, हमारी हमें दे हमारी अज़वाज, फ्रॉम आवर स्पाउसेस, एंड फ्रॉम आवर ऑफस्प्रिंग, हमारी ज़ुर्रियत में से, क़ुर्रत अयुन, हमारी आंखों की ठंडक. अच्छा, अब व्हाट डज आंखों की ठंडक मीन? I'll try to be brief in this explanation. अरब्स के नज़दीक ना ये एक मेटाफोर था फॉर कंफर्ट. कैसे? I'll explain. अरब्स जब डेजर्ट्स में ट्रैवल किया करते थे ना, तो वो क्या करते थे कि अपनी पूरी बॉडी को लपेट लिया करते थे, कपड़े में किसी तरह के लपेट लेते थे, क्योंकि जब सैंडस्टॉर्म आते थे ना डेजर्ट में, तो वो रेत जब उड़ती है, वो तपती हुई गर्म रेत होती है, और वो जब आपकी स्किन पे लगती है, आपकी नाक, कान, आंखों, मुंह में लगती है, तो वो जला देती है चीज़ों को, राइट? इट गिव्स यू सिवियर desert sores and rashes, and it dries out your skin, and it's really bad. It really burns. आपको जलन हो रही होती है, right? So they used to wrap everything up, their faces, their noses, their ears, head, skin, everything, except for their eyes. क्योंकि आंखें तो चाहिए ना देखने के लिए, आंखों को अगर कवर कर लेंगे तो चलेंगे कैसे? तो आंखों में वो मट्टी जाती थी और आंखें जलती थी उससे, लाइक लिटरली आंखें यूज्ड टू बर्न. और उसको ये लोग कहते थे अस्फन आयुन, आंखों का गर्म होना या आंखों का जलना. दैट वाज रियली पेनफुल. तो और जैसे ही उनको कोई रेफ्यूज, कोई कोई केव मिल गया, या किसी दरख्त के नीचे कहीं छुप गए, या कहीं ऐसी कोई जगह मिल गई जहाँ वो उस सैंडस्टॉर्म से बच के निकल गए, वो रेफ्यूज मिल गया, तो वो जो सुकून आता था आंखों को, उसको फिर ये लोग कहते थे कुर्रत आयुन, आंखों का ठंडा हो जाना. बाहर एक तूफान था जिसने मुश्किल में डाला हुआ था, इतने शदीद दर्द में, कर्ब में डाला हुआ था,
और हम उससे निकल के there is comfort, there is safety now. That was qurrata a'yun. Apply this metaphor to this dua. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन, कि ए रब हमें दे हमारी अज़वाज और हमारी ज़ुर्रियत, हमारे ऑफस्प्रिंग में से हमारी आंखों की ठंडक, कंफर्ट एंड सेफ्टी फ्रॉम अ स्टॉर्म. बिकॉज दुनिया बाहर की जो है दैट इज इफेक्टिवली लाइक अ स्टॉर्म. ठीक है, दैट इज हार्ड, दैट हैज हार्डशिप्स, दैट हैज all so much going around and everything that's going on. It makes your life difficult. It puts you in pain. It tires you out. It exhausts you. It drains your energy. It's basically discomfort. जब आप घर आए वापस, जब आप अपनी स्पाउस को देखें, जब आप अपने बच्चों को देखें, तो दैट शुड बी comfort and solace from that pain. जितना आप मुश्किल में थे और जितनी आप दर्द में थे और जितने आप उस स्टॉर्म में थे दुनिया के, उससे आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाती है घर आके. योर होम शुड बी अ सेफ हाउस. इट शुड नॉट बी अनदर वॉर दैट यू फाइट. घर आके आपको मजीद होना चाहिए, अब यार अब बच्चों को देखना पड़ेगा, अब बच्चों की चिक चिक पिक पिक, अब ये अब वो, अब घर जाके बीवी से लंबाएगा, ये नहीं लाया वो नहीं लाई, ये नहीं किया वो नहीं किया. या अभी ये मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे तो बोलेंगे कि यार मैं खाना नहीं बनाया अभी तक, ये नहीं किया. दिस इज योर हाउस बीइंग अनदर सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर यू. दिस ब्रेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कुर्रत आइन. इस्लामिकली अ होम शुड बी आपके आंखों की ठंडक. आप बाहर से रोल खप के आए तो अपने स्पाउस और अपने बच्चों को देख के आपकी आंखें ठंडी होनी चाहिए. आपके दिल से बेसाख्ता निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो लकी. डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जो अभी मैं झेल के आ रहा हूँ बाहर से, आई हैव दिस टू कम बैक. आई हैव दिस होप, आई हैव दिस वाइफ, आई हैव दिस फैमिली, right? And that can only happen if, again, both partners compromise when it's necessary, both partners are merciful and kind when it's necessary, both partners try and go above and beyond. दोनों एहसान का अपने अपनी एहसान का पोर्शन डालने की कोशिश करेंगे तो फिर इट विल बिकम कुर्रत आयुन, वरना नहीं बनेगा. ठीक. हज़रत खदीजा ही कह सकती हैं नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी दोस्तों के साथ जा रही हूँ. My responsibility is not to calm you down. Which again, legal responsibility नहीं है उनकी. But that breaks a home, right? उससे घर नहीं चलता. तो this is how you make a house safe. You make it comfortable. You make it the coolness of your eye. Case study number 2, example number 2. हजरत एक्चुअली ये वाला लास्ट टाइम हमने कर लिया था. यही चीज ऑन द ऑपोजिट साइड, फ्रॉम द हस्बैंड साइड. हजरत सफिया जो थी, शी वॉज फ्रॉम अ Jewish tribe. ठीक, before she converted to Islam and she married Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she was from a Jewish tribe. तो उनको क्या होता था कि वेट वाज इट हजरत सफिया, मैं मिक्स कर रहा हूँ क्या? सुबान फैक्ट चेक मी प्लीज. I think it was Safiya. Wait, let me check. Uh, Not Maria. That she वो तो Abyssinian थी. Uh, wife of हाँ सफिया ही थी. Right? उनको बेसिकली हदीस में आता है कि हजरत हफ्सा ने गालिबन
कोई और भी हो सकता है, बट वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट, उन्होंने उनको शायद टॉन्ट किया था, या ज़रा इन अ डिमीनिंग टोन ही कही था कि भाई आप तो यहूदी की बेटी, डॉटर ऑफ अ ज्यू। तो उनको बात बहुत बुरी लगी थी। और वो आता है सीरत में कि वो रो रही थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आप ने पूछा कि भाई क्या, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मुझे, आपकी बाकी बीवियाँ इस तरह से यहूदी की बेटी बोल के मुझे वो करती हैं, सॉर्ट ऑफ नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो आप सल्लम ने बैठाया, उन्होंने कहा तुम्हें इसमें फख्र होना चाहिए, तुम्हारा बाप नबी, तुम्हारा चचा नबी, और तुम्हारा शोहर भी नबी, तो तुम्हें क्या कह सकते हैं इसमें। एंड दिस वाज सच अ पावरफुल मूव फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनकी बात सुनी, उनको उसी में से कंफर्ट भी दिया, और उसी बात को उनके लिए एक मैटर ऑफ, अगेन दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि भाई जो डॉटर ऑफ ज्यू होने की बात हुई थी, टेक्निक ताना तो ये मारा था ना, थी तो डॉटर ऑफ अ ज्यू ही, बट he turned that very thing into something which she can be proud of, कि तुम्हारा बाप नबी हारून अलैहिस्सलाम, अच्छा बाप इन द सेंस के एंसेस्टर, नॉट डायरेक्ट फादर, तुम्हारा चचा नबी मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारा शौहर नबी। एंड अगेन दिस सेज कि आप वसल्लम ने उनको सिर्फ इमोशनल होने की वजह से वो नहीं कर दिया, डिसमिस नहीं कर दिया, नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी ही बात थी, बस उसने मजाक में कह दिया होगा, नहीं। आप वसल्लम ने फौरन से गुस्से में भी नहीं आ गए कि नहीं मैं भी जाके पूछ के आता हूँ क्या कहा है उसने। उनके वो जिस टाइम पे अपसेट थी, उनके साथ बैठे, उनको रियश्योर किया, उनको कंफर्ट किया, और उनको एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट दे दिया कि वो तुम्हें इस बात से ताना मार रही है, तुम इस बात पे खुश हो, फख्र करो, राइट। फिर हजरत आयशा का वो किस्सा है ना, कि एक दफ़ा आप हजरत आयशा के पास बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि "ऐ आयशा, मुझे पता होता है कब तुम मुझसे नाराज़ हो, कब तुम मुझसे खफा हो, या कब तुम मुझसे खुश हो।" तो आयशा कहती हैं अच्छा कैसे पता होता है आपको। तो कहते हैं कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो तुम कहती हो बिरब्बिल मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम मुझसे खफा होती हो तुम कहती हो बिरब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। अब अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप वसल्लम ने बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ स्टेट ऑफ ए न्यूली फॉर्म्ड मतलब स्टेट, ठीक है, मदीना की रियासत अभी नई नई बनी है, देयर इज एक्टिव हॉस्टिलिटीज, हर थोड़ी देर में कोई बाहर से कबीला आ जाता है जंग करने के लिए, कोई खतरा आ जाता है, मसले अलग चल रहे हैं मदीना में, इंटरनल इश्यूज अलग चल रहे हैं। आप वसल्लम वो सारे इश्यूज अलग हैंडल कर रहे हैं, इस्लाम पहुंचाने का काम अलग हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हैज 9 अदर वाइफ्स, ठीक। विद ऑल ऑफ दैट, when he's with Hazrat Aisha, he's giving her that much time and attention कि एक इतनी छोटी सी बात को वो नोट कर रहे हैं, इतने छोटे से डिफरेंस को, कि जब मुझसे खुश थी तो भी रब्बी मोहम्मद कह रही थी, जब मुझसे खफा हो गई तो भी रब्बी इब्राहिम कह रही। एंड ऑब्वियसली अगर ये उन्होंने कभी खफा होते हुए रब्बी इब्राहिम कहा होगा ना, तो इट्स वेरी लाइकली कि कोई आर्ग्यूमेंट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से वो खफा हुई, और उस टाइम पे जब उन्होंने रब्बी इब्राहिम बोला तो आप ने नोटिस कर लिया। लेकिन
उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट रेज नहीं किया, इसको फालतू में आग नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी नाराज है, अभी मैं ये बात छेड़ दूंगा कि मजीद तुम अब मेरा नाम भी नहीं लोगी, ये भी नहीं करोगी, राइट, इट वुड मामला खराब होता। तो उस चीज को नोटिस किया, आइडेंटिफाई किया उसका कॉज, उसको याद रखा, एंड देन एट अ लेटर टाइम जब मौका मिला, व्हेन एवरीथिंग वाज कूल, व्हेन एवरीथिंग वाज काम, तो फिर एज अ मैटर ऑफ अ लविंग जेस्चर, आई नोटिस यू, आई सी यू, आई पे अटेंशन टू यू, ये बात मेंशन की कि देखो, this is how the relationship works, this is how a husband is supposed to be. Like, this is what paying attention to your wife means, this is what mawadda and rahma means. ठीक, आप सल्लम उस टाइम पे कह सकते थे कि नहीं, क्या आप तुम, क्या मतलब मुझसे खफा हो तो मेरा नाम नहीं लोगी, सिर्फ तुम्हारा शोहर नहीं हूँ मैं, अल्लाह का नबी भी हूँ, राइट, बट नहीं, that would have been an unwise thing to do. This is again such emotional attention to detail, such emotional maturity, such regulation. फिर एक लंबी हदीस है, उसमें हजरत आयशा आप वसल्लम के साथ बैठी हुई हैं, और एक पूरा लंबा किस्सा है वो सुना रही हैं कि प्री इस्लामिक टाइम की, जहलियत के दौर की कुछ ख़वातीन के साथ वो बैठी हुई थी, और वो सब यू नो 11 ख़वातीन थी, और सब बैठ के वो अपने अपने शोहरों के बारे में बात किया करती थी, और उनके बीच में ये एग्रीमेंट था कि वो कुछ छुपाती नहीं थी, राइट, तो अपने कोई अपने शौहर की तारीफ करता था, कोई बुराई करता था, वोटेवर, एक लंबी जोड़, वो पूरी अच्छी लंबी हदीस है, उसमें पूरी डिटेल है कि क्या क्या किस औरत ने क्या क्या, किस औरत ने क्या क्या। एंड पे 11वीं औरत जो थी, उम जर, वो, उसकी जब बारी आती है तो कहते हैं कि उसने अपने हस्बैंड की तारीफ ही तारीफ की, और बहुत तारीफ की, और कि ऐसा था और वैसा था, और उसके कसीदे बहा दिए, का सिर्फ एक मसला ये था कि उसको एक औरत नजर आ गई एक दफा, जो उसको पसंद आई, और उसने मुझे तलाक दे के उससे शादी कर दी। अच्छा, अब ये अच्छा लंबा किस्सा है अगेन, राइट, ये कोई छोटी सी बात नहीं, ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी सुना रही है हज़रत आयशा आप वसल्लम को बैठ के, विच प्रोवाइडेड के एक नबी का औरतों के इस किस्से में क्या ही इंटरेस्ट होगा, राइट, लेकिन आप वसल्लम ने बैठ पूरी सुनी, और इतनी अटेंशन से सुनी कि उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही हूँ जैसे उम्मे ज़र के लिए अबू ज़र था, बस फ़र्क ये है कि अबू ज़र ने उसको तलाक दे दी थी और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगेन, अटेंशन टू डिटेल, एक्टिव लिसनिंग, नॉट इग्नोरिंग हर। ठीक है, यूजुअली हम क्या होता है कि अगर कोई उनसे बात कर भी रहा होता है इस तरह की जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कहते हैं हाँ ठीक है, ओके ओके, हम सारे हिला रहे होते हैं, सुन कुछ भी नहीं रहे होते। यहाँ पर हमने पूरा वो सुना, उस पर इतना गौर किया कि उसमें से वो डिटेल पिक आउट करके उसको अपनी सिचुएशंस रिलेट करके उसको बयान किया in a way that would probably have increased the love between Aisha and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These are prime examples of a healthy marriage. This is how mawadda and rahma work. फिर छोटी छोटी चीजें, आप वसल्लम एक बर्तन में जहाँ से हजरत आयशा एक बर्तन में जहाँ से पानी पीती थी, एग्जैक्टली जहाँ उनके होंठ लगे होते थे वहीं से अपने होंठ लगा के पानी पीते थे। कोई बोटी खाती थी हजरत आयशा, तो एग्जैक्टली जहाँ से उन्होंने खाई होती वहीं से उठा के उसको खा लेते थे। कि स्मॉल थिंग्स दैट मेक यू फील लव्ड, दैट डोंट मीन मच इन अ प्रैक्टिकल सेंस, मतलब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने जहाँ से होंठ लगा के पानी पिया एग्जैक्टली वहीं से लगा के पानी पी, बट एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल, एक कनेक्शन बढ़ता है, एक प्यार बढ़ता है ना, दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। फिर उनके साथ खेलने का, उनके साथ तफरी का मामला,
हज़रत आयशा के साथ मशहूर हदीस है ना कि आप वसल्लम ने एक दफ़ा मेरे साथ दौड़ लगाई, तो मैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं छोटी थी, मैं तेज़ भागती थी, तो मैं आगे निकल गई, मैं जीत गई। फिर कई साल बाद मैं जब ज़रा थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और मैंने थोड़ा सा वज़न गेन कर लिया था, तो हमने फिर दौड़ लगाई और इस दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। तो वो कहते हैं वो याद है ना पिछली दफ़ा का, वो अब बराबर हो गया, अब हमारा कैंसिल आउट हो गया, अब मैं भी जीत गया। तो अगेन स्मॉल लिटिल फन थिंग्स। जब एक दफ़ा ईद के मौके पर कुछ एबिसिनियंस आए हुए थे मस्जिद नबवी में और वो अपना एक ट्रेडिशनल डांस कर रहे थे, तो हज़रत आयशा को वो देखना था। तो आप वसल्लम ने क्या किया कि अपनी वो जो हुजरे के जो कह लो चौखट सी थी या डोरवे कह लो, उस पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए और आपकी चादर या शॉल या जो भी कह लो उसको, वो आपके हाथ से नीचे लटकी हुई थी, तो सब कुछ ढका हुआ था। हज़रत आयशा आपके कंधे पर अपना सर रख के देखने लगी, आपके पीछे खड़ी हुई थी, तो आपके कंधे पर सर रख दी और काफ़ी देर देखती रही। तो आपस में बोला कि बस अब चलें, तो हज़रत आयशा ने कहा नहीं, खड़े रहे, कहा अब चल नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर हज़रत आयशा ने खुद बोला अच्छा बस अब मैंने देख लिया अब चल। तो स्मॉल लिटिल थिंग्स जो आपको, अगेन आप उसमें भी कह सकते हैं कि यार मैं थक गया हूँ बस चलें, लेकिन नहीं, उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया क्यों, देखना है यार, उसको दिखा दो थोड़ी देर क्या हो जाएगा। रोमांस इज समथिंग दैट इज सुन्ना, इट इज़ नॉट, मतलब हमारे यहाँ उसको बहुत एक नेगेटिव सेंस में दिया जाता है ना कि नहीं जी मियाँ बीवी भी ना हाथ पकड़ के खड़े हों ना साथ बैठे हों ना यू नो डेट्स पे जाए ना कुछ करें। नहीं, दैट्स रॉन्ग। ठीक, you're supposed to give each other time, you're supposed to be romantic with each other, you're supposed to be intimate with each other, not just intimate in the physical sense, intimate in the emotional sense. Go on walks together, go, do whatever you like together. रातों को बैठ के make a cup of chai and talk. That's what strengthens the relationship. हमारे यहाँ एक एक्सट्रीम ये है कि बिल्कुल ही कि मियाँ बीवी साथ बाहर भी ना जाएं अकेले या घर में भी साथ एक सोफे पे बैठे भी ना हो, कुछ लोग इतने भी एक्सट्रीम हो जाते हैं, फिर रोमांस जाके अपने कमरे में करो, यहाँ पे नहीं किया करो। शादीशुदा हैं हम लोग, ठीक है, देयर आर बाउंड्रीज, डोंट बी यू नो किसिंग ईच अदर और कडलिंग इन अ लिविंग रूम, लेकिन बेसिक्स, बीइंग नाइस टू ईच अदर, बीइंग slightly romantic with each other after you're married is fine. You should encourage it. हमें अगेन अपनी यंगर जनरेशन को दिखाना चाहिए कि भाई दिस इज नॉर्मल इन अ मैरिज। एक एक्सट्रीम ये है कि हम इसको भी लिमिट कर देते हैं, फिर दूसरी एक्सट्रीम ये है कि देर डेटिंग, देर नॉट मैरिड, या चलो डेटिंग चलो छोड़ दो ना, एक अलग एक्सट्रीम, एंगेजमेंट्स के बाद, लोग डेट्स पे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, यू नो मूवीज पे जा रहे हैं, रात भर गप्पे मार रहे हैं। भाई you're not married, you're not uh, halal for each other. There are still all the boundaries of non-mahram relationships between you guys. जब तक निकाह नहीं होता तब तक you're not mahram. लेकिन अगेन बोथ एक्सट्रीम्स बोथ डैमेजिंग। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल इस्लामिक सेंटर पॉइंट था, जो बैलेंस्ड व्यू था, वो छोड़ दिया। ठीक, तो बट दिस इज ऑल दैट is very foundational to how a marriage is supposed to be run, how a marriage is supposed to be flourished, how a marriage is supposed to be nourished. ये चीज़ें होंगी तो the marriage will remain healthy. ये चीज़ें नहीं होंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो eventually you'll break in the big things as well. You're like मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूँ, what is she giving me, right? या मैं इसकी बात क्यों मान रही हूँ, ये मुझे क्या ही दे रहा है, I don't feel happy, I don't feel satisfied, I don't feel cared for, so why should I be married, right? Marriage is supposed to be all these little things.
मैंने कॉन्फ्लिक्ट मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन की बात की थी। कि आपके इन लॉज और आपके बीच में, आपके इन लॉज और आपके स्पाउस के बीच में आप होने चाहिए, राइट। सीरा टेक्स दिस वन स्टेप फर्दर। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर आप वसल्लम के, मतलब हज़रत आयशा के हुजरे में आते हैं, आप वसल्लम वहीं पे होते हैं। वो बाहर ही खड़े होते हैं, तो सुनते हैं कि हज़रत आयशा ज़रा सी ऊंची आवाज़ में आप वसल्लम से कुछ कह रही होती हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाटएवर। वो फिर जब अंदर आते हैं तो एकदम से नबी है अल्लाह का, तुम क्या किस तरह बात कर रही हो? वो जरा गुस्से में आगे बढ़ते हैं आयशा की तरफ। तो रसूल वसल्लम एकदम से उन दोनों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर, अच्छा बाय द वे ये बाप बेटी है, दिस इज नॉट, ये ससुर नहीं है, दिस इज नॉट द फादर इन लॉ, दिस इज द फादर ऑफ द वाइफ। फादर ऑफ द वाइफ वाइफ को ये कह रहा है कि तुम अल्लाह के नबी से बात करो, क्या कर रही हो? और तो आप सल्लम एकदम से उनके बीच में आ जाते हैं। He doesn't let Hazrat Abu Bakr approach Hazrat Aisha. But Abu Bakr समझ जाते हैं कि I went too far. He apologizes, he goes out. आप सल्लम मुड़ते हैं पीछे जब हज़रत लोग निकल चुके होते हैं ना, देखा मैंने तो बचा लिया उस आदमी से। तो अगेन दिस वाज समथिंग दैट वाज एक कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ किसी वजह से कोई डिसएग्रीमेंट, कोई झगड़ा हो रहा था, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था। और what probably and the average man today would have done, उसको देखो तुम्हारा अपना बाप भी मेरी साइड ले रहा है इस मामले में, देखो तुम कितनी मेरी नहीं सुनती, अपनी बाप की सुन लो। ऐसे ही कुछ होता, ऐसे ही कुछ सुनने को मिलता। नहीं, जैसे जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है वो मेरे और बीवी के बीच में, यू डोंट गेट टू स्टेप इनटू इट। और इमीडिएटली वंस द वर्कर लीव्स, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turns the entire situation into a sort of a humorous way to diffuse it। ठीक है, कि वो हमें मजाक हो गया, थोड़ा सा आयशा का दोस्त ठंडा हो जाएगा, उनके बीच में दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। इट डजंट ऑलवेज नीड अ फाइट, इट डजंट ऑलवेज नीड अ 1 hour लेक्चर आफ्टर एवरी लिटिल थिंग। चीज़ों को आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसी हदीस के फर्दर उसमें आता है, कुछ दिन बाद हज़रत अबू बकर वापस आए, कुछ दिन बाद कुछ देर बाद, इसमें इख्तलाफ है। तो हज़रत आयशा के हुजरे से आप वसल्लम और उनकी हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो जब वो परमिशन लेके अंदर आए तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, जैसे आपने मुझे अपनी अपनी कॉन्फ्लिक्ट में, अपने झगड़े में शामिल किया था, वैसे ही मुझे अपनी खुशी में भी शामिल करें। तो आप वसल्लम ने बुलाया, कर लिया हमने। तो दैट्स हाउ द मैरिटल रिलेशनशिप इज, दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी हैंडल्ड। इट्स सपोज टू, वो मवद्दा और रहमा वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो जब तक नहीं रहेगा तब तक इट विल, दिस विल कीप हैपनिंग। ये आपकी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो बढ़ के बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाएंगे। योर मैरिज माइट रिमेन लीगली वैलिड, ठीक है, आप लीगली सारे राइट्स पूरे कर रहे हैं अपने स्पाउस के, लेकिन स्पिरिचुअली इट्स डेड, रिलेशनशिप आपका इज डेड। ठीक है, यू नॉट अ हेल्दी मैरिज। आपके जो बच्चे उस घर में बड़े हो रहे होंगे, दे विल नॉट सी दिस एज अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट। तो देयर इज दैट। खैर बहुत सारी हदीसें हैं जो मैटर उसमें बहुत हो सकती है। मैंने बस छोटी सी एक बात और करके, एक्चुअली ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको खत्म करके मैं वो करूंगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हाउ डू यू एम्बॉडी मवद्दा इन योर एक्शंस? These are 6 points taken from वो जो बुक मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी। That's a very important book। ये जो मैरिज वाला टॉपिक है ना, this is a very vast topic, मैं इसको कवर नहीं कर सकता 2 सेशंस में, ठीक है। तो आई हाईली 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 रिकमेंड कि इफ़ यू आर अ रीडर, रीड दैट बुक। इफ़ यू आर मोर ऑफ अ ऑडिटरी लर्नर या लिसनिंग पर्सन, तो जो लेक्चर सीरीज है उसको गो थ्रू कर लें। बट 100% रिकमेंडेड, इज वेरी वैल्यूएबल। रेडी फॉर एक्स्ट्रा महात भाई, यार लोगों पे कुछ रहम करो, कितनी महात भाई की शक्ल देखेंगे। हैव अ चेंज ऑफ पेस, हैव अ चेंज ऑफ फेस, ठीक। बट ये 6 हैबिट्स हैं मवद्दा की, जो दैट आर बेसिकली प्रैक्टिकल वेज टू कीप द लव अलाइव, कीप
ये practical ways to implement mawadda. इसके number one, keep your love for the sake of Allah. ठीक है, अपने आप को ये याद constantly दिलाते रहें कि our love is for the sake of Allah. Even अच्छा, पता है अक्सर हम भूल जाते हैं कि how मतलब my spouse doesn't remind me of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, they don't go with me to lectures, they don't go with me to dawah sessions, they don't go with me to the masjid. तो कैसे मैं, you know, how do they remind me of uh, Allah subhanahu wa ta'ala? Technically speaking, everything that they do should remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. वो आपको कहते हैं कि you know, call your parents. That's a manifestation of them reminding you of something Allah subhanahu wa ta'ala has told you to do. To be kind and to keep ties with your kin, with your family. Okay? If they pray with you, they're reminding you of Allah subhanahu wa ta'ala. If they force you to be better, let's say physically, mentally, emotionally, they ask you to stop a bad habit, say this, ask you to stop smoking or something. They're manifesting Allah subhanahu wa ta'ala in those actions. तो आप उसको उस लेंथ से देखें कि I love my spouse because I love my spouse for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I love my spouse because they remind me of Allah subhanahu wa ta'ala. Because everything that they do is a manifestation of the commands Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon them and upon me. Okay? Number one, अपनी intention को constantly renew करते रहें, right? Second, giving gifts. Right? Gifts are, इस पर तो हदीस भी है ना कि actually इधर होगी इस बुक में, let me put it up. This is 11 बुखारी की हदीस है ये कि तहादु तहाबु, कि give gifts to one another because it helps increase love. मोहब्बत बढ़ती है दो लोगों के बीच में जब तहाइफ दिए जाते हैं. ठीक, तो गिफ्ट shouldn't just be limited to आपका अर्ली मैरिज फेज या प्री मैरिज फेज, आपका रिश्ता फेज जिसमें आप यू नो जब जब मिलने जा रहे हैं, या व्हेन यूर एंगेज जब जब मिलने जा रहे हैं तो यू नो फूल लेके जा रहे हैं, केक्स लेके जा रहे हैं, चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं, यू नो बैग्स लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जब शादी हो गई एक दफ़ा तो बस घर में धनिया पुदीना मिर्चें आती हैं, उसके अलावा और किसी का बुके नहीं आता. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक ठीक, लिटिल गिफ्ट्स, you don't have to constantly be spending thousands या tens of thousands of rupees on gifts. Little things. आप ऑफिस से वापस जाते हुए एक फूल ले गए, यू नो, कभी कहीं बाहर गए तो यू गॉट सम डेजर्ट, यू गॉट सम आइसक्रीम. आप कोई छोटी सी आपने कोई यू नो कहीं झुमके देख लिए, कोई ब्रेसलेट देख लिया, आपने अपनी वाइफ के लिए ले गए. लिटिल थिंग्स, राइट? बट डू दैट. आपने हस्बैंड के लिए कोई वॉलेट ले लिया, अगेन छोटी छोटी चीज़ें, बट जस्ट द एक्ट ऑफ गिविंग अ गिफ्ट ना, इट इंक्रीजेज लव. फिर डेडिकेट अनइंटरप्टेड टाइम टू अटेंटिव टॉक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे इन द करंट एज जहाँ हमारे पास बेडरूम्स के अंदर फोन्स हैं ना. फोन्स इन बेडरूम्स आर क्रिप्टोनाइट फॉर मैरिजेस. आप रात को दोनों एक कमरे में हैं and you're both on your phones until you sleep. That destroys marriages. Put your phones aside. Schedule time. ठीक है, हफ्ते में कोई एक दिन, कोई एक वीकेंड ऐसा होगा कि जिसमें phones will be completely off limits, power off होके कहीं बाहर पड़े होंगे, and it's just you and me and a cup of coffee. ठीक, and we will talk until whenever you want. Dedicate time. यार, give each other time. आपका आपके स्पाउस से पूरी रात बैठ के बातें करना इज इबादत. आपको इसका सवाब मिलेगा.
प्रोवाइडेड कि दे आर योर स्पाउस, ठीक है, गर्लफ्रेंड से बात करने का सवाब नहीं मिलेगा, बट प्रोवाइडेड कि दे आर योर स्पाउस, आप पूरी रात बैठ के टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, कोई कुरान और हदीस की बातें आप ना करें, टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स, आपको उसका सवाब मिल रहा है, राइट? जस्ट लिसनिंग टू योर वाइफ एंड लुकिंग एट हर लविंगली, आपको इस बात का सवाब मिल रहा है. Schedule time to do that. Make sure to give each other that time. ठीक. फिर be the comfort of each other's eyes. कोई क़ुर्रत आयुन वाली बात है. एक दूसरे को वो प्रोटेक्शन, वो कंफर्ट, वो सॉलेस दें कि अगर बाहर तूफान है तो घर के अंदर सुकून है, तस्कीन है. Right? लितस्कुनु इलैहा. Go back to the purpose of marriage. The purpose of marriage क्या है? कि there's comfort, solace, tranquility in this bond. Right? तो it shouldn't be कि मैं बाहर से एक जंग लड़के आऊँ और फिर घर आके दोबारा जंग लड़ूँ. ठीक है, दिन भर वाइफ बच्चों के साथ एक तरह की जंग ही लड़ रही है ना, कि तैयार करो, लंचेस तैयार करो, स्कूल भेजो, वापस लेके आओ, होमवर्क कराओ, सब कुछ करो, और उसके बाद हस्बैंड के घर आने के बाद वापस दोबारा कि यार तो बच्चे सोए नहीं, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं. That's not how it should work. Be the comfort of each other's eyes. कि आपको देख के your spouse takes a sigh of relief. कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो जाएगा चीज़ें. दिन भर मुश्किल था, अब it will be fine. Right? Then social media and in general like show off culture. This starts right from the first day, from the wedding itself. हमारा मसला क्या है कि हमें चीज़ें दिखाने के लिए चाहिए लोगों को. वी डू, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सबसे लाविश हॉल में हम शादी करेंगे, 1000-1500 बंदे हम बुलाएंगे और इतनी देगों का खाना बनाएंगे, और मटन भी होना चाहिए, और बीफ भी होना चाहिए, और चिकन भी होना चाहिए, और फिश भी होना चाहिए, और यू नो आई हैव बीन टू वेडिंग्स जो कि मेरे फादर के मतलब ऑफिस में बाबा के किसी सबॉर्डिनेट, बाबा के किसी जूनियर ऑफिसर की भाई या बहन की शादी है. मतलब 1000-1500 लोग हैं उस शादी में. नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, एक्चुअली आई हैव बीन टू 1000 people weddings. I don't even know the name of the person getting married. मैं क्यों उस शादी में? I'm only there at the wedding because 90% of the time, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय कुछ लोग जिनकी अच्छी एक्चुअल इंटेंशंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बुलाने वाले होते हैं, ठीक, इल्ला माशाअल्लाह, लोग इतनी बड़ी शादी क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए. इतनी बड़ी शादी हुई थी, वो गुलबर्ग ग्रीन में हॉल है, उसमें शादी हुई थी हमारी बेटी की. व्हाट्स द पॉइंट? क्या किया आपने? इतने लोग, आपने 1000 बंदा अगर अपनी बेटी की शादी पे बुलाया, टेल मी इफ इवन 500 ऑफ दोज पीपल नो के शादी किसकी है. टेल मी इफ यू कैन नेम ऑल 1000 ऑफ दोज पीपल जिनको आपने इनवाइट किया. यू कांट. तो इट्स वेरी illogical to do those weddings except for the fact के show off, right? और फिर it embodies in every aspect. आपने घर लेना है तो ये उससे कि दिखाने लोग क्या कहेंगे कि कैसा घर लिया है, गाड़ी लेनी है, फोन्स लेने हैं, और अब सोशल मीडिया के साथ इट हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट देन एवर कि भाई हर चीज़ दिखानी है, हर चीज़ एक स्टेटस सिंबल है. दैट ब्रेक्स द कॉन्सेप्ट मैन. आपके जो एक दूसरे के लिए कुछ करने की ख्वाहिशात थी ना, those die out because now you're constantly thinking of showing off. And this is very similar to the next point, which is कि कुछ चीज़ें आप दोनों के आपस के लिए होती हैं. Spousal privacy is a very important thing. हर चीज़ दुनिया को दिखाने की नहीं होती, right? आपका शादी का एल्बम दुनिया को नहीं देखना चाहिए. चलो, you know what? एक at its core, I would say कि don't even post your wedding photos on social media. But चलो, let's say you have a private account, you have family and friends there. आपने
कुछ फोटोज लेके कुछ वीडियोस लेके अपनी एक्चुअल वेडिंग इवेंट की आपने पोस्ट कर दी, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, आई विल गिव यू दैट मच, प्रोवाइडेड कि हिजाब वगैरह प्रॉपर था एंड एवरीथिंग, फाइन। आई हैव सीन वीडियोस ऑफ वापस कमरे में आ गए हैं, अब बालों में से पिन्स निकल रही हैं, मेकअप उतर रहा है, कपड़े चेंज हो रहे हैं। वाई वाई डज द वर्ल्ड नीड टू सी दिस? दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है आपके कमरे में क्या हो रहा है। Keep those moments intimate, keep those moments between the two of you. You just got married, for God's sake यार। Keep your privacy sacred. आपके बीच में क्या होता है, क्या बातें होती हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्या यू नो अगेन यू आर सपोज टू बी द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। इसका बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि यू डोंट एक्सपोज एवरीथिंग आउटसाइड। क्योंकि अगर आप हर चीज दुनिया को दिखा देंगे तो फिर आप दोनों तो क्लोजेस्ट नहीं रहे, अब तो सब लोग इक्वली क्लोज हो गए, राइट? कंसील, प्रोटेक्ट, कवर, डोंट शो एवरीथिंग टू द वर्ल्ड। आपकी स्पाउसल प्राइवेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस्लामिकली स्पीकिंग। इन चीज़ों का ख्याल रखें। नज़र एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब बहुत ज़रूरी से ज़रूरी तो गलत हो गया, बहुत हकीकी चीज़ है। आप ने फरमाया ना कि अल आइन हक़, कि नज़र हक है, लग जाती है। और एक मशहूर हदीस है आप वसल्लम की, ये हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस है ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल आइन लतुदखिलु रजुल क़ब्र वल जमल वल जमल क़िद्र, के नज़र इंसान को कब्र में और ऊंट को पतीले में दाखिल कर देती है। इतनी डेंजरस चीज़ है। अपने आप को, अपने घर को, अपने इस रिश्ते को नज़र से बचाएं, इसकी हिफाजत करें, इसको प्रोटेक्ट करें, इसको कंसील करें। दिस इज सीक्रेट, राइट? दिस इज हाउ यू cherish and flourish and nourish a marriage. This is how marriage is supposed to be. Again, this was a very summarized, very brief overview of concepts. बहुत सारी चीज़ें और हैं that this book is very good on. I highly, highly, highly recommend this book. मैं दोबारा शेयर कर दूंगा दफ़ा ग्रुप में, but please go through this. Please either go through this or go through the video lectures. They're the same thing, content same है, सिर्फ ये written form में है, वो video form में है। तो but that's that. So I hope this session was beneficial and you guys took something away from it. Uh, any questions? Any quick questions? अगर थोड़े से लंबे questions हैं तो इंशाल्लाह please put them in the group. We'll discuss them there क्योंकि मगरिब का time हो गया तो I don't want to take too long for questions. If there are any short questions, please, if anything you guys want to share, any points, any thoughts you might want to add. नहीं? चलो, I hope we get to, again, the same dua that I've been making for a few sessions now. Okay, I hope we get to break the curse of the previous generation, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस्लाम, बहुत सारी चीज़ों में इस्लाम से दूर हट गए हैं ना। So I hope we get to overcome that. I hope our generation has the power and has the strength and has the ability to leave that behind and to make changes and to make healthy marriages and healthy decisions in our life. I hope this hasn't been too vague, and I hope you guys get to take something away from this in a more practical sense. Or when we do, inshallah, approach marriage, we approach it from the Islamic lens and keeping in mind all of Islamic teachings. Is it necessary that each other's spiritual or religious journey should remain theirs? Remain theirs in what sense? कि कोई और उसमें interfere ना करे, या कि it remains private? I'll answer both. If you mean that it should remain private, so it's not completely necessary, but it is beneficial in the sense that आपके sins वो नहीं हो रहे, expose नहीं हो रहे ना, तो keep your journey to yourself कि बस ठीक है, I am improving, मेरा मसला है. It remain between Allah and them about the religious journey.
As long as you don't reveal your sins, as long as you understand कि भाई ये कुछ गुनाह है मेरे, ये मैं reveal नहीं कर रहा, that's fine. You don't necessarily have to keep everything private of your religious journey, as long as you conceal your sins. Uh, if you mean कि कोई interfere ना करे, तो yes, no one has the right to interfere, but you should take advice from people. You should, खास तौर पे people you trust, मतलब आपके parents हो गए, आपके trusted elders हो गए, teachers हो गए, कुरान teachers हो गए, इस तरह के लोग हो गए. तो it's good to take their advice in some things, but हाँ, they shouldn't have the right to interfere कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे. That's not. So I hope that answers your question. Inshallah, any other questions, please put them in the group. Please, अगर थोड़ा सा private या personal question है, give it to one of the moderators, give it to me personally, I don't mind. Or inshallah, I'll address that later. नमाज का time हो रहा है, तो let's end this. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.